શ્રી હાટકેશ્વર મહાદેવ સંસ્થાન તરફથી પૂજ્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા સાહેબનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ અને તેમના આશીર્વચન અમને પ્રાપ્ત થાય. ચોક્કસ. श्री हाटकेश्वर महादेव संस्थान की ओर से जो ये स्मृति चिन्ह दिया गया है, मुझे यहाँ के ट्रस्टियों ने और पदाधिकारियों ने बताया कि चातुर्मास के दौरान आषाढ़ कृष्ण अमावस्या से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान को ये चांदी का बंगला लगता है और उसका अत्यंत रमणीय अत्यंत सुंदर स्वरूप का ये स्मृति चिन्ह संस्थान की ओर से प्रसादी के रूप में मुझे भेंट किया गया. मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ. वडनगर हम सब जानते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का गांव है, अपना उनका वतन है. मेरा अपना गांव भी यहाँ से केवल 2 मील दूर सुंढिया. तो बचपन में तो बहुत आते थे, लेकिन आज कई वर्षों के बाद आना हुआ है पुनः. और इस क्षेत्र का जो विकास ये सभी पदाधिकारियों के पुरुषार्थ से, भक्तों के सहकार से हुआ है. पूरी ऐसा लगता है मानो काया पलट हो गई है. बचपन में आते थे, मंदिर तो प्राचीन है, अनेक लोगों की श्रद्धा का केंद्र है ही, लेकिन ये प्राचीन तीर्थों का पुनर्निर्माण करना, उनकी महत्ता को बढ़ाना और लोगों के उनके प्रति जो श्रद्धा है उनमें अनेक गुना बढ़ोतरी करना, ये सभी पदाधिकारियों के पुरुषार्थ से ही संभव है. आइए हम जाकर के भगवान हाटकेश्वर के दर्शन भी करें और उनके इतिहास के बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करें. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. નિમંત્રણ 8 તારીખ છેલ્લો દિવસ છે આપણો વિરામનો, તો બધા પધારજો. ખાસ એવો અમારો આગ્રહ છે. અનુકૂળ હોય તો 5-10 મિનિટ પધારજો બુકરવાડા. आओ दर्शन. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. ચોક્કસ કરી આપણે, ચોક્કસ. જુઓ, મારું હરતું ફરતું કાર્ડ એક તે તમારા રજનીભાઈ છે, તમારા નજીકના, અને રાજેશભાઈ આચાર્ય છે આયોજનનો બદલ માર્ગદર્શન માટે. પણ બહુ નરેન્દ્રભાઈના વતનમાં થાય એટલે હું આપને એવી વિનંતી કરું છું કે આપણો સંકલ્પ વડલા જેવો લઈએ. ગુરુજી વિદેશ જઈને આવે અને પૂછી પ્લાનિંગ કરો, પછી ભાઈ સાથે કોન્ટેક્ટ કરી એમને કેવી રીતે અનુકૂળ છે અને આપણને કેવી પણ આપણે શ્રાવણ મહિનામાં જ કરીએ. શ્રાવણ મહિનામાં ચોક્કસ આપણે નક્કી કરો. હું તારીખ આપું તમને ચોક્કસ પંચાંગમાંથી જોઈને. શિવ કથા જ કરીએ. બહુ મોટા વ્યાપાર. શિવ કથા શિવ કથા જ કરાય આપણે. હા, ભાગવત કર્યું તો આપણે રામ મંદિરના લાભાર્થે ભાગવત કર્યું. વડીલ ગુરુજીના પાસે એટલી બધી વિદ્વતા છે ને, ત્યારે ગણપતિમાં ગયા ને તો ગુરુજીએ સામેની ટ્રસ્ટીઓને કીધું અહીંયા ગણેશ ઉપર જ કથા કરી. અહીંયા શિવ કથા હમણાં સુરતમાં આપણે કરી, શ્રીમાળી બ્રાહ્મણો દ્વારા આયોજન કર્યું શિવ કથા. એ આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં છે, તમે જોજો. એટલું ભવ્ય આયોજન કર્યું છે એમણે શંકર શિવ કથાનું. બલવંતસિંહ રાજપૂત પણ ગુરુજીના પરમ સેવક, સિદ્ધપુરમાં હમણાં કથા કરાવી, એમને ત્યાં જ રોકાયા હતા. ઉતારો મારો એમને ત્યાં જતો, બાપુને ત્યાં જતો. અયોધ્યા મંદિરમાં પણ પીએમ હાઉસમાંથી ગુરુજીને નિમંત્રણ કર્યું. 22મી જાન્યુઆરી આપણને આમંત્રણ હતું ત્યાં આગળ. પર્સનલી નવેમ્બર મહિનામાં આમંત્રણ આવી ગયું હતું પહેલું જ. આપણે તો આપણે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અતિથિ દેવો ભવ કરી આપણે. થયું આજે. પણ ચોક્કસ ભગવાન હાટકેશ્વર મહાદેવને આપણે કથા સંભળાવીએ, શિવ કથા કરીએ. પણ આજે બધા ટ્રસ્ટીઓ બધા હાજર હતા. આરતી પછી બધા આ ઘરે બધું જ કેવું છે, મીટિંગ આવી હતી એટલે ભેગા થયા હતા. તમારો અહીંથી ગાડી યુ ટર્ન કરીને આગમન થયું. સરસ આનંદ. તમે જેમ કહ્યું ને ભાઈ કે મહાદેવ ભગવાને હાટકેશ્વર બોલાયા છે, એનો હુકમ થયો તમને. એ તો ગાડી યુ ટર્ન કરીને એવો આવ્યા. કરો કે કથા બહુ મોટી ભવ્ય થાય. અહીંયા સોમભાઈ સાહેબને પણ ગુરુજી નજીકથી ઓળખે છે એકદમ. હા. નમઃ પાર્વતી શ્રીપતये હર હર મહાદેવ. हाटकेश्वर महादेव की. आत्मीय स्वजनों, इस समय हम प्राचीन नगर, ऐतिहासिक नगर वडनगर में, और उसमें भी वडनगर का केंद्र तपोभूमि जो मानी जाती है, ऐसे
हाटकेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर, और जहां मुझे ट्रस्टियों ने बताया कि चातुर्मास में भगवान के जो 4 धाम हैं, केदारनाथ और ये सब, वहाँ तो पट बंद हो जाते हैं, लेकिन वह चातुर्मास में भगवान महादेव और सभी देव यहाँ पर विराजमान करते हैं। निरंतर भगवान शंकर का जो निवास है, नागरों के कुल देवता है, और यहाँ पूरे गुजरात के लोगों के श्रद्धा के केंद्र ऐसे भगवान हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में स्कंद पुराण के नागर खंड में पूरा एक अध्याय है जिसमें यह हाटकेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन है। भगवान शंकर के स्वरूप के लिंग पूजा का आरंभ, प्रादुर्भाव यहाँ से हुआ है। देवताओं से अपराध हो गया, शंकर भगवान आक्रोश में आए, अब उनको शांत कैसे किया जाए, तो देवताओं ने जाकर के हिमालय में माँ पार्वती को प्रार्थना की, और माँ पार्वती और शिव जी का मिलन होकर के पार्वती जी के स्थापन की, और वो लिंग स्वरूप में भगवान महादेव, हाटकेश्वर महादेव यहाँ पर विराजते हैं। तेज है, ऊर्जा है, श्रद्धा है, और उसके परिणाम से देवों के देव महादेव सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ प्रिय स्वजनों, यहाँ पर इस स्थान का विकास निरंतर होते रहा है। यहाँ के उपासकों की निरंतर उन्नति होती है, क्योंकि कहा गया है ना कि चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। भगवान शंकर के पास जो कोई मनोरथ लेकर आता है, भगवान शंकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महादेव का भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर जैसे जल की धारा बहती है, ऐसे भगवान शंकर की कृपा अपने भक्तों पर भी निरंतर बरसती रहती है। इन सभी पदाधिकारियों के पुरुषार्थ से बहुत सुंदर तीर्थ का विकास हुआ है। भोजनालय भी है, वहाँ सभी के लिए भोजन भी प्रसाद के रूप में उपलब्ध है। तो यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन हम करें, भगवान शंकर हाटकेश्वर महादेव के आशीर्वाद हम प्राप्त करें। आइए भगवान हाटकेश्वर के दर्शन करें। અને અત્યારે તો હવે નવી આધુનિક અત્યારે સોમનાથમાં ને એમાં આજે છે. हाँ हाँ, આપણે તો વર્ષો પહેલા જ્યારે આજે 2000 જ્યારે મંદિરની પેલી થઈ ત્યારે એ વખતે કેટલા વૈજ્ઞાનિકો પેલા હશે, હશે right. તો એની અને શિવજીનું જે હાટકેશ્વર મહાદેવ કૃષ્ણ છે ને હા. એનું સીધું શિવલિંગ ઉપર આવે બરાબર. ત્યાંથી પાછળના ભાગેથી તમે જળ ચડાવો ને તો સીધું એના ઉપર આવે. બરાબર. જવાબ प्रिय स्वजनों, हाटकेश्वर महादेव के बारे में ये जो स्कंद पुराण में वर्णन है कि महादेव पाताल में स्थित है, इसलिए ये हम भीतर की ओर उतरते हैं। मुतते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। स्वरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। हाँ,
त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः हर 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 महादेव हर। आत्मीय स्वजनों, जैसा मैंने कहा, ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है। आप इसकी रचना को देख सकते हो। जिस तरह का ये कंस्ट्रक्शन है, पत्थर से बना हुआ प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, और उसके गुंबज में इसके कितना सुंदर कार्य किया हुआ है, ये बहुत कम देखने मिलता है। विशेष करके उत्तर भारत के मंदिरों में इतने समय तक ये टिके रहना, क्योंकि धार्मिक विरोधी आक्रांताओं के द्वारा जो नुकसान हुआ था, उससे भी ये मंदिर बच कर रहा है और उसका रिस्टोरेशन भी हो रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का ये अपना वतन है, तो उनकी भी बड़ी श्रद्धा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। वो भी जब भी इस तरफ इस प्रदेश में आते हैं, भगवान हाटकेश्वर के दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। हमने आज यहाँ पर दर्शन किए, कृतार्थ हुए। भगवान हाटकेश्वर को प्रार्थना करूं कि आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो, आप सभी के जीवन के विघ्न दूर हों और उनकी कृपा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ये निरंजन जी हैं, यहाँ हाटकेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी के रूप में जो सेवा करते हैं, और बिल्कुल सामने अंबाजी और बहुचरा जी दोनों देवियों का समन्वय है। हम माँ अंबाजी और बहुचरा जी के भी दर्शन करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सुभद्रिकां कां पीडवासिनीं वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन् निखाणमम् एकाण सर्वलोकम् एकाण। ચલો ભલે ગુરુજી, ભાઈ, આજે હું બધા આનું છું. ટ્રસ્ટીગણ ગયા, કાલે ઇલેક્શનના લગતી લોકો સંકળાયેલા છે, બધા હા, પદ, બધા બરાબર. પદના સાથે, બરાબર. એટલે એ લોકોની મિટિંગો છે, એટલે ચોક્કસ, કાલે ચોક્કસ. મતદાન કરાવવા માટેના બરાબર. પ્રયાસ તો આ બરાબર, છેલ્લો ચોક્કસ દિવસ, કરવો એટલે એના પડે, માટે હા. જતા રહ્યા. એટલે ચોક્કસ. મને કે તમે ગુરુજી જોડે છેલ્લે રહો. બરાબર, આવો। આ આપણે બનારસ કાશી વિશ્વનાથ મુખ્ય ચાલો, ઉત્તર તરફનું દ્વાર, આ entrance. ઉત્તરાભિમુખ પ્રવેશ દ્વાર। हाँ, હનુમાન દાદા એમના ઉપર નવગ્રહો છે। अच्छा। હા, નવગ્રહો છે। देखिए प्रिय स्वजनों, यहाँ के मुख्य पुजारी जी निरंजन जी हमें बता रहे हैं, श्री हनुमान जी उत्तराभिमुखी श्री हनुमान जी हैं, और ऊपर जो द्वार शाखा में दिखाई पड़ रहे हैं वो नवग्रह हैं, और उनके भी हमें दर्शन हो रहे हैं। ये मेन प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार ये है। द्वारपाल में हनुमान और भैरवनाथ है, हाँ, ये मंदिर। द्वारपाल में यहाँ हनुमान जी है और इस तरफ भैरव का मंदिर है। आय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि। यहाँ ऊपर 7 यक्ष है। अच्छा, भैरव जी के मंदिर के ऊपर 7 यक्ष की मूर्तियां हैं। देखिए, यही है परिजन शोभा। जब आप किसी मंदिर में पधारते हो और मंदिर की निरंतर सेवा करने वाले विद्वान भूदेव साथ में रहते हैं, तो मंदिर के रहस्य, उनके जो दर्शनीय स्थान है, उनके प्रति हमारा ध्यान खींचते हैं। नहीं तो हम केवल मूर्ति के दर्शन करके आगे बढ़ जाएं, पता भी न चले हमें कि ऊपर 7 यक्ष हैं। तो यही निरंजन जी जैसे विद्वान भूदेव साथ में रहें तो उनका लाभ है। रिद्धि सिद्धिની સાથે આદ્ય ગણેશ, જમણી સૂંઢના ગણપતિ ખરા ને, હા. એ આદ્ય ગણેશ કહેવાય છે। એટલે પહેલા સીધા ગણપતિ હતા। ये आद्य गणेश दाहिनी सूंड वाले रिद्धि सिद्धि के साथ
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे 18 पुराण है, उनके सब पात्र है। ये विश्वकर्मा जी है, विश्वकर्मा है, ये विश्वकर्मा है। वो परशुराम हमारे विश्वकर्मा। इष्ट देवता क्या है या परशुराम। ये 18 पुराण में ये परशुराम जी की मूर्ति है, ये भगवान विश्वकर्मा है। वो नारायण है, यहाँ नारायण है, हाँ में वामन जी है, कोने में वामन जी, वामन अवतार जी जी जी, हाँ कमंडलू हाथ में लेकर के। वामन परशुराम चिरंजीवी છે બધા ગુરુજી નરસિંહ મહેતાનું हाँ हमारा स्थापना करी। जैसा मैंने कहा प्रिय स्वजनों, हाटकेश्वर महादेव ऐसे तो सभी के श्रद्धा के केंद्र है, लेकिन विशेष करके नागर जो ज्ञाति के लोग हैं उनके इष्टदेव माने जाते हैं। और गुजरात के प्रसिद्ध वेदांती भक्त कवि नरसिंह मेहता, जिन्होंने कुंवरबाईનું मामेरू लख्યું और उसी का हिंदी अनुवाद पूरे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह उत्तर भारत में हम देखते हैं, नानी बायरो मायरो। वो नानी बायरो मायरो जिनकी पुत्री के लिए भगवान स्वयं पधारे और उनके मायरा भरा है, वो नरसिंह मेहता जिनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति थी, इतनी उनकी श्रद्धा थी। और नरसिंह मेहता स्वयं नागर थे, तो हटकेश्वर महादेव उनके इष्टदेव हैं। यहाँ पर ये हटकेश्वर महादेव के परिसर में नरसिंह मेहता की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। प्रिय स्वजनों, ये भी प्राचीन मंदिर जिस तरह से बनाया गया है पत्थर का, उससे से पता चलता है कि कितना प्राचीन और ऐतिहासिक है। हटकेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में ये रामेश्वर महादेव हैं। जैसे अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में कहा गया है, सेतु बंधेतु रामेशम, यहाँ पर भगवान रामेश्वर की स्थापना भी की गई है। श्री रामेश्वर महादेव की जय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। हाटकेश्वर महादेव के प्रांगण में एक और महादेव का स्वरूप मानकेश्वर महादेव। बोलिए श्री मानकेश्वर महादेव की जय। જ્યારે રજવાડાઓ કોઈ રાજ ઉપર ચડાઈ કરીને આવતા ને એટલે એમનું માન વધતું, એટલે માન વધ્યું એટલે એમને માનકેશ્વરની સ્થાપના કરેલી, એવી બારોટોના ચોપડામાં આ મંદિરનો ઉલ્લેખ છે। प्रिय स्वजनों, यहाँ के पुजारी जी निरंजन जी ने मुझे बताया कि मानकेश्वर नाम कैसे पड़ा। पुराने समय में जब राजा युद्ध करके आते थे, विजय करके आते थे, तो जब विजय प्राप्त की तो उनका मान बढ़ता है। वो मान जिनकी वजह से बढ़ता है, ये मान बढ़ाने वाले, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले भगवान महादेव के आशीर्वाद, तो इसलिए उनका नाम पड़ा मानकेश्वर। ये ऐसा उल्लेख यहाँ के जो बारोट है, जिनके वंशावली पुराने जो जिसको गुजराती में चौपड़ा बोलते हैं, इतिहास जिसमें लिखा होता है, उस इतिहास में से ये प्राप्त हुई घटना आदरणीय निरंजन जी ने मुझे बताई, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूं। इसलिए कि राजाओं के मान, विजय प्राप्त करने के बाद उनके मान बढ़ाने वाले महादेव ये मानकेश्वर महादेव हैं। बोलिए श्री मानकेश्वर महादेव की जय। प्रिय स्वजनों, ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वो पीपल और वटवृक्ष दोनों साथ में हैं। आप देख सकेंगे कि यहाँ पर ये जो पत्ते हैं, ये पीपल के पत्ते हैं। और हमारे शास्त्रों में पीपल ये भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल ये मेरी विभूति है। और ये जो पर्ण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये वट के हैं। तो वट शिव जी का स्वरूप माना गया है, पीपल विष्णु का स्वरूप, वट शिव जी का स्वरूप। ये हरिहर के समन्वय समान पीपल और वट के वृक्ष का समन्वय है, हरिहर का समन्वय। और मैं कथाओं में हमेशा कहता हूँ कि विष्णु और शिव अलग नहीं है, वो एक ही स्वरूप है। शिव जी
विष्णु की उपासना करते हैं और विष्णु भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। दोनों में कोई भेद है ही नहीं। हम भी कोई भेद ऐसा न समझें। सनातन वैदिक संस्कृति के ऋषियों ने हमें यह एकता का उपदेश दिया है, अद्वैत का उपदेश दिया है, और इसके अनगिनत उदाहरण संसार भर में प्राप्त होते हैं। इसमें से एक ये हटकेश्वर महादेव के मंदिर में हरिहर का मिलन, पीपल और वटवृक्ष का संयोग। પ્રોજેક્ટ છે ને, પ્રોજેક્ટ ચાલુ થાય છે પ્રોજેક્ટ ચાલુ हाँ એટલે સર લાઇટ શો अच्छा એના પ્રોજેક્ટનું કામ ચાલુ છે हाँ हाँ થોડા દિવસ પ્રોજેક્ટ એમાં પગથિયા ખરાબ લાગતા હતા, હા. એનું નવા પગથિયા હતા એટલે એવું લાગે. એટલે એ અહીંયા પાણી બહેનો ચડીને રેડતી हाँ લગભગ 100 બેડા, 100 अच्छा ચરોડી પાણીમાં એટલું અંદર પથ્થરની ટાંકી છે. ओके અને અંડરગ્રાઉન્ડ આપ અંદર ગયા હોય हाँ તો શંખ મૂક્યો છે મેં અત્યારે, हाँ એના ઉપર આટા છે. એ નાગના મોંમાંથી हाँ नागनु मुख से, હા, એ बराबर 4 કલાક પાણી રહે. ભગવાને ભોગ લગાવ્યો, हाँ એ નાગના મોંમાંથી કડી કાઢી નાખવાની. हाँ 4 કલાક સુધી રહે. લગભગ 12:30 થી 4:30 વાગ્યા સુધી अभिषेक સતત ધારા थतो રહે. रहे। હા. वाह। થતી જ રહે. ઉપર ઓકે, વર્ણન કરી આવો. 4 મહિના. प्रिय स्वजनों, एक और विशेषता इस मंदिर के मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राचीन समय में एक था कि भगवान शंकर के गर्भगृह में, मंदिर में अंदर केवल यज्ञोपवीतधारी वेदपाठी ब्राह्मण ही जाकर के अभिषेक कर सकते थे। तो क्या अन्य लोग भगवान की उपासना नहीं कर सकते? नहीं, भगवान महादेव ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते। भगवान के लिए तो सब मनुष्य अपनी संतान हैं। तो वे सब लोग अपनी श्रद्धा के प्रतीक सम भगवान महादेव पर अभिषेक कर सके, इसलिए प्राचीन समय में जब ये मंदिर बनाया गया उस समय वास्तुशास्त्रियों ने कितने विज्ञान का प्रयोग किया होगा प्रिय स्वजनों, कि यहाँ ऊपर चढ़ के उस समय के लोग, माताएं, महिलाएं इस स्थान में जल डालती थी और 100 गागर भर के उसमें जल डालती थी। वहाँ गर्भगृह में भीतर पत्थर की टंकी है, आज भी है ये व्यवस्था। तो उसमें जो ये पानी जाता था 100 गागर, 100 मटकियाँ भर के वो पत्थर की टंकी में भरा रहता था। और भगवान को भोग लगने के बाद दोपहर के समय, उसके बाद वहाँ आपने देखा होगा कि मंदिर में नागमुख है, तो वो नागमुख के ऊपर के जब निकाला जाए द्वार उसके, तो फिर अभिषेक शुरू हो जाता था। और वह अभिषेक मध्याह्न के समय से लेकर के शाम के 4:30-5 बजे तक, अर्थात 4-5 घंटे तक निरंतर भगवान शंकर के ऊपर ये जल की धारा होते रहती थी। अब सोचिए, न कोई वाटर पंप, न कोई इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उस समय के हमारे स्थपतियों ने, वास्तुशास्त्रियों ने कैसी सुंदर व्यवस्था की कि नगर के प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी ज्ञाति का हो, लेकिन उसके द्वारा चढ़ाया हुआ जल भगवान महादेव के ऊपर अभिषेक के रूप में अर्पण होता रहे। तो ऐसी ये व्यवस्था आज भी, दिस प्रोसेस वर्क्स, आज भी ये सिस्टम चालू है। अभी तो भीतर प्रवेश भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ जल चढ़ाना चाहे तो उसका जल भगवान महादेव के ऊपर 4 घंटे तक, 5 घंटे तक चलता रहेगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर महादेव की जय। आओ। प्रिय स्वजनों, ये मंदिर बिल्कुल वास्तुशास्त्र के प्रमाण से बनाया गया है। दक्षिण में यम का स्थान है, ये पश्चिम है जहाँ हम खड़े हैं, तो पश्चिम में वरुण है और उत्तर में कुबेर का स्थान है। अब एक बात और मैं बताऊं कि वरुण है और ऊपर वारुणी का मंदिर है, स्थान है, मूर्ति है। दक्षिण में यम है, यम से ऊपर यमी का स्थान है और कुबेर के ऊपर उसकी पत्नी का स्थान है।
तो यहाँ पर हमारे स्थपतियों ने हमारी जो प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जो ये लाक्षणिकता है कि पति नीचे है, पत्नी का स्थान ऊपर है, नारी का ये सम्मान किया गया है। नारी समानता की बातें तो लोग अभी करते हैं, एम्पावरमेंट की बातें तो अभी करते हैं, सशक्तिकरण की बातें अभी करते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने मंदिरों के माध्यम से समाज को ये संदेश बरसों पहले दिया है कि पति नीचे है, पत्नी का स्थान ऊपर है, नारी शक्ति है, उसकी श्रेष्ठता को हमने स्वीकार किया है। अब यहाँ से निकलते समय एक अंतिम बात प्रिय स्वजनों मेरे अंतःकरण की कह दूं, ये युगानुयोग कैसा सुंदर है। आज चैत्र कृष्ण त्रयोदशी का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, और इस शिवरात्रि की रात को भगवान हाटकेश्वर महादेव के दर्शन का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। पुनः एक दान भगवान से एक बार प्रार्थना करूं कि भगवान हाटकेश्वर महादेव के आशीर्वाद हम सभी पर निरंतर बरसते रहें, जीवन में प्रगति हो, विघ्न दूर हो, विकास हो और जीवन में धन्यता का अनुभव हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आत्मीय स्वजनों, आज चैत्र कृष्ण त्रयोदशी सोमवार का पवित्र दिन, शिवरात्रि और सोमवार, हम वडनगर में भगवान हाटकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। वापस जब लौट रहे हैं तो हमारे प्रिय, हमारे आत्मीय राजेश भाई आचार्य ने सूचन किया कि गुरुजी वडनगर का रेलवे स्टेशन भी देख लीजिए। जिस तरह से उसकी काया पलट की गई है, आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर गाड़ी रुकाते हैं और ये दर्शन का लाभ आप सभी तक भी पहुंचाऊं। तो यह है वडनगर का रेलवे स्टेशन। नरेंद्र भाई मोदी के जीवन को जो हम जानते हैं, बड़े संघर्ष का जीवन रहा, बड़ी सामान्य स्थिति से ऊपर आए, तो हम सब ने देखा है और सुना है कि ये नरेंद्र भाई बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और स्वयं नरेंद्र भाई भी वो पैसेंजर की जो ट्रेन आती उनको सबको चाय देते थे। विशेष करके जब आर्मी के सोल्जर्स आते थे, सैनिक आते थे, तो उनके प्रति नरेंद्र भाई को अत्यंत आदर हुआ करता था, उनके प्रति वो विशेष ध्यान देते थे। तो ये जो भूमि है, अभी तो इसकी काया पलट हो गई, उस ज़माने में तो बड़ा सामान्य, मैंने अपने बचपन में देखा है, वडनगर बहुत सादा स्टेशन हुआ करता था, दिन में मुश्किल से 2-3 ट्रेनें आती थी। लेकिन अब ये इसकी पूरी काया पलट कर दी, नूतनीकरण किया है, भव्य रूप में इस मंदिर को बनाया है। और विशेष करके प्रिय स्वजनों, मैं आपको बताऊं कि जो चाय की किटली, चाय की दुकान जो बनाई थी, उसका प्रतीक यहाँ पर किटली के रूप में रखा गया है। तो नरेंद्र भाई को एक प्रकार का आदर अर्पण करते हुए, क्योंकि ऐसा यशस्वी, लोकप्रिय और समाज में परिवर्तन लाने वाला, राष्ट्र प्रेम जगाने वाला, धर्म के प्रति उत्साह बढ़ाने वाला और विकास की दिशा में ले जाने वाला, अब समग्र भारत को पूरे विश्व में आदरणीय स्थान देने वाला एक महान सपूत ये वडनगर की भूमि से उत्पन्न हुआ। और उसकी बाल्यावस्था के संघर्ष का ये संस्मरण करते हुए ये किटली यहाँ पर और ये वडनगर का स्टेशन। समय बहुत हुआ है रात का, इसलिए हम अंदर तो जाना नहीं चाहते और कानून का पालन करते हैं, क्योंकि जब तक टिकट नहीं निकालेंगे तब तक अंदर नहीं जाएंगे। और अभी कोई ट्रेन है नहीं, तो टिकट बारी भी बंद हो गई है, इसलिए केवल बाहर से ये आपको दर्शन कराता हूँ वडनगर के रेलवे स्टेशन का। और ये सूचन प्रिय स्वजनों, जैसा मैंने कहा, आइए राजेश भाई, ये राजेश भाई का सूचन है और कहा कि हम ये रेलवे स्टेशन को भी देखते जाएं। तो मैं राजेश भाई का भी धन्यवाद अदा करूं, क्योंकि ये जो रूपांतरण हुआ है, नूतनीकरण हुआ है, वो मैंने स्वयं नहीं देखा था, मैं स्वयं भी पहली बार देख रहा हूं।
राजेश भाई धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके माध्यम से दुनिया भर के सभी लोगों को ये देखने मिलेगा। भारत माता की जय। जय। वंदे मातरम। हरकेश भाई आप भी आइए, हरकेश भाई रावल भी हमारे साथ में हैं और उन्होंने भी अभी जो कथा चल रही है उसमें बहुत अच्छा योगदान और बहुत अच्छा साथ दिया है। पिछले 6 दिनों से मेरी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। तो हरकेश भाई और राजेश भाई आचार्य, हम अब ये वडनगर रेलवे स्टेशन की ओर से प्रस्थान करेंगे। आज ये चैत्र कृष्ण त्रयोदशी सोमवार का पवित्र दिन, शिवरात्रि का पवित्र दिन, भगवान गणपति के दर्शन किए ऐठौर में और पुत्र के दर्शन किए, उसके बाद पिता के दर्शन यहाँ पर वडनगर में हाटकेश्वर महादेव के दर्शन किए और वडनगर रेलवे स्टेशन का ये दृश्य देखते हुए चलिए आज के दिन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।